Hi guys, good morning once again. So let's start a new topic today which is known as chemical reactions and equations. But sir आप तो current electricity ले रहे थे उसका क्या हुआ? Patience. वो टॉपिक छोड़ा बिल्कुल भी नहीं है. वो टॉपिक अगेन कल होगा and hopefully I think probably possibly could be shall be might be कल शायद वो टॉपिक खत्म भी हो जाएगा. Okay, because कल का लेक्चर करीबन 1 घंटे का होगा. So technically I needed to do a chapter, so I thought that which topic should I choose. So somebody wrote in the comment section that sir please do chemical reactions and equations. So I thought let's do chemical reaction and equation. Okay, so let's start with the word chemical reaction and equation and post this topic in current electricity. Then we would be completing one bio topic. Okay, now so fine, let's start with the topic of chemical reaction and equation. So first of all, what do you mean by the word chemical reactions? First of all, what do you mean by the word chemicals? Now, chemicals are technically, those substances which involve chemistry. Chemistry means arrangement of electrons. और जब वो combine करना चालू करते हैं, but then comes, sir कुछ समझ में ही नहीं आया, sir combine क्यों करते हैं? आप खुद सोचो, दो मेरे पास में कोई substances हैं, which are elements or compounds, it can be anything at all. इस एलिमेंट को से ए एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स की डेस्परेट जरूरत है. इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन्स. आपने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा था, व्हेन इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी गेनिंग अ नेगेटिव चार्ज. जब किसी भी बॉडी पे कोई नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाते हैं, एंड इन द सेम कंडीशन तो दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और कंपाउंड विल आल्सो बिकम काइंड ऑफ अनस्टेबल. अब वो ढूंढ रहा है किस चीज के लिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए हो ताकि ये मुझसे इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए. ओके, सो बोथ ऑफ देम व्हेन दे कंबाइन टुगेदर एंड सच काइंड ऑफ इक्वेशंस या सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस जिसमें आप इसको लिखते हो विल बी नोन एज केमिकल इक्वेशन. जब भी कभी आप कोई केमिकल इक्वेशन की बात करते हो, केमिकल इक्वेशन नेसेसरली वुड बी हैविंग अराउंड टू थिंग्स. वन विल बी नोन एज reactants and another will be known as products. Reactant is always written on the left hand side, LHS, left hand side, while product is always written on the right hand side of the reaction. What do you mean by reactant, sir? Reactant are those substances which tends to react and form a stable compound known as product. What do you mean by stable compound? इसका मतलब ये stable नहीं है, kind of नहीं है. It requires something and that is the reason why. अब इसको और simply understand करने के लिए you need to just think about this example. आपके घर में कोई old age कोई person होंगे, say for example grandfather हो सकते हैं, it can be nanny, it can be your father, it can be your mother. No, I'm talking about that age around 70 plus or something of that sort. But it is not a common thing कि वो हमेशा ऐसा behave करेंगे. But I'm just trying to give you an example. Let us say suppose grandfather हैं. अब जब भी कभी किसी भी चीज़ के लिए उनके पास में जाओगे, वो हर चीज़ बेटा देखो धीरे धीरे काम करो, आराम से काम करो, क्या इतनी जल्दी है, इतना क्या कर रहे हो, एंड सो फोर्थ. सो विल गिव यू आराम से रिलैक्स. अब आप बोल रहे हो नो मेरे पास टाइम नहीं है, आई नीड टू गो, आई नीड टू रश दिस. एवरीबडी इज इन chaos. थोड़े से वॉलेटाइल हैं सबके सब, थोड़े से अनस्टेबल हैं. कौन है अनस्टेबल? आप लोग, हम लोग. बट वो लोग चिल आउट. तो आज दादाजी आज आपने क्या किया? कुछ नहीं बेटा, आज तो हम गए थे घूमने के लिए. पूरा दिन? नहीं बेटा पूरा दिन नहीं, फिर गार्डन के अंदर भी गए एंड सो ऑन. So understand, you are right now in this stage which is known as reactant, because you want to achieve something but you haven't achieved yet, so you are kind of unstable. And once you will be reaching that stage, it will be known as what? Products. So your grandfather, grandmother, nannies and all those particular people, respected people, all of those will be products because they are very very stable right now. Got it? So हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज़ volatile कब होती है? जब वो reactant में होती है. फिर सर reactant products पे क्यों convert होते हैं? Common sense बच्चा, कौन चाहेगा कि unstability को life long carry करके चले? क्या आपको जिंदगी भर पढ़ना है? There's nothing bad over there. I mean, one should study, but
जिंदगी भर एक ही क्लास, दूसरी क्लास, फिर क्लास बाय क्लास, नो, दैट डजंट लुक गुड. सो इन दैट केस यू नीड टू बिकम प्रोडक्ट्स. कैसे बनोगे? आपने बाय द वे अच्छी एजुकेशन ले आओ, उसके बाद में आप अच्छा बिजनेस ओपन कर सकते हो, अच्छी जॉब्स आपके लिए खुल जाएंगे, अच्छे कॉलेजेस हो जाएंगे. सो ऑल ऑफ दिस विल लीड टू व्हाट? प्रोडक्ट्स. सो विच वन इज मोर स्टेबल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स? Normally products are always more stable. Okay, now reactants are always to be written on the left hand side because they will be showing that reaction is taking place, while product will be saying something is getting formed. तो जब भी अभी कभी वर्ड लिखते हैं तो ये होता है कंज्यूम, while this will be getting formation. So which is getting consumed, it will be the reactant, which will be getting formed, it will be known as the products. Very simple. Okay. Now let's write a simple reaction. C plus O2 will give you CO2. C plus O2 will give you CO2. ध्यान रखना है, चैप्टर कल खत्म हो जाएगा. It's that simple chapter. C plus O2 will give you CO2. यहां पर C है, यहां पर है O2, यहां पर है CO2. अब किसी ने पूछा कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या है, तो आप बोलोगे रिएक्टेंट्स. Reactants. And what is getting formed? Products. Which is more stable? Common sense, stable. Which is comparatively unstable? Unstable. हमेशा ध्यान रखना, चीजें वही रिएक्ट करती हैं जो हमेशा अनस्टेबल होती हैं. जिनको ज्यादा गुस्सा आता है, नॉर्मली इट इज बीइंग सेड, जिनको ज्यादा गुस्सा आता है वो क्या होते हैं? हमेशा अनस्टेबल. आपने कभी देखा है भगवान की स्टैच्यू, आप कुछ भी उनको बोल दो, स्टेबल. जितने जो एजेड पीपल होते हैं दे आर ऑलवेज स्टेबल. उनकी लड़ाइयां सबसे कम होती हैं. क्यों? दे आर स्टेबल. So always remember, reactants will be unstable while products will be comparatively stable. Okay. Now let's try and move on to the part of equation. So what technically do you mean by the word equation? Equation is nothing else but is that particular expression in chemistry which will show what is a reactant and under what conditions it is forming into or converting into products. So that is known as equation. Okay. Now, so अभी तक आपको ये मालूम पड़ा कि reactants and products, reactants LHS, products RHS. अब कुछ चीजें भी देख लो प्लीज. First of all, the word balancing the equation. Balancing the equation. How can you balance the equation? So let's see this. C plus O2 will give you CO2. सबसे पहले तो आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जहां पर आप लिखोगे इनिशियल. यहां पर आप सब बॉक्सेस बनाओगे. रिएक्टेंट्स, फिर आप बनाओगे प्रोडक्ट्स. ओके. सो ये कुछ ऐसा बॉक्स होगा. Something like this. Then comes इसी के अंदर ऐसा वाला एक और बॉक्स. अब रिएक्टेंट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपने नंबरिंग डाल दिया. फर्स्ट इधर पे आप डालोगे कार्बन, यहाँ पे कार्बन आपने लिखा. अब इसके आगे आप चाहो तो ऐसे एरो बना सकते हो, या जैसा भी आपके टीचर ने आपको बताया, या यू कैन राइट इन व्हिचएवर फील लाइक, वे यू फील लाइक. रिएक्टेंट्स के अंदर कार्बन के एटम इनिशियल कंडीशन में कितने थे? दैट इज 1. प्रोडक्ट के अंदर कार्बन के एटम्स कितने हैं? देखो एक ही कार्बन है, 1. या आप यदि एरो नहीं चाहते हो तो यू कैन मेक इट लाइक दिस, ऐसे भी करके बना सकते हो, जैसा आपका मन करे. देन कम्स O, ऑक्सीजन. आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पर एक और ब्रैकेट बनाना, वहां पर नाम लिख देना, चॉइस आपकी है. ऑक्सीजन कितने होंगे? यहाँ पर है 2. यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2. So technically if you see, LHS is equals to the RHS, LHS is equals to RHS. जब दोनों के दोनों बैलेंस हैं, इसका मतलब such kind of reaction in which the number of moles before and the number of moles after the reaction
will always be equal, will be known as what? Balanced reaction. So balanced and balanced. That's all. That's so simple. Got it? Let's try and understand another reaction. So say suppose karo, I have got this part. N2 plus H2. These kind of the arrows are known as fish hooks. But बताता हूँ आपको इसके बारे में. ये बनाएगा NH3. सर अब क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है? ये रिएक्शन में एक एरो आगे जा रहा है तो देखो एक एरो पीछे भी आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? Such kind of reaction which can proceed in both the directions from reactant to product and from product to reactant back will be known as reversible reactions. Reversible क्योंकि वो दोबारा से वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकती है. जब ये इससे ये बन जाती है तो ये अनस्टेबल हो जाता है. हल्का सा भी प्रेशर लगाया या कुछ भी कंडीशंस चेंज हुए ये दोबारा ऐसे बन जाएगा. इट्स लाइक द सेम कंडीशन. ओके नाउ लेट्स ट्राई एंड अगेन सी इनिशियल कंडीशन क्या होगी हमारे पास में. इनिशियल फिर से वापस से लिख देता हूँ रिएक्टेंट, फिर से लिख दिया प्रोडक्ट्स. अब रिएक्टेंट के अंदर मैंने फिर से इस बार क्या लिखा? N2 कितना है? N2 के नाइट्रोजन के N के यहाँ पर है 2. लेकिन इनिशियल कंडीशन में यहाँ पर कितने हैं? 1 क्योंकि एक ही नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है. जबकि यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लिख दिया. सिंपल. वापस से बॉक्सेस बना देना प्लीज पूरे. सेकेंड H कितने हैं? H 2. वहां पर कितने हैं? 3. जैसे याद होगा आप लोगों को लीनियर इक्वेशन में अपन ने मल्टीप्लाई किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था. आपका मेन एम है इनको और इनको इक्वल लेकर के आना. नाउ सिंपल वे टू डू दिस इज हमेशा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है सबसे पहले एलिमेंट्स को अटैक करो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में लेते हैं, पहले बाकी एलिमेंट्स को लो. तो लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग दिस. तो फाइनल कंडीशन में देखते हैं क्या होगा. तो सबसे पहले रफ वर्क के अंदर कहीं पर कर लेना, अदरवाइज पूरी कॉपी मिसअप हो जाते हैं. n के कितने हैं यहाँ पर? 2. जबकि यहाँ पर कितने हैं? 1. तो यहाँ पर अपने मन से 2 लगा देता हूँ. तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया? फर्स्ट फाइनल कंडीशन के अंदर रिएक्टेंट्स, वंस अगेन प्रोडक्ट्स, देन रिएक्टेंट में मैंने n कितना किया? n था मेरे पास में 2. और अब देखो यहाँ पर भी n कितना हो गया फाइनल प्रोडक्ट में? 2. तो ये तो चलो बैलेंस हो गया. लेकिन प्रॉब्लम है बाकी जगह पर वो बैलेंस नहीं हुआ. सो लेट्स सी दिस अगेन. H कितना है? 2. अगेन ब्रैकेट्स एंड टेबल बना देना. यहाँ पर H कितना है? 6. सो ओवर हियर H इज 2, यहाँ पर H कितना है? 6. बट प्रॉब्लम है सर ये तो बैलेंस्ड है बट ये वाला पार्ट तो बैलेंस ही नहीं है. अगेन एक और टेबल बनानी पड़ेगी. ओके सो फाइनल के अंदर वंस अगेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. अब देखो n तो बैलेंस हो गया तो इसको तो अपने को हाथ लगाने की जरूरत है नहीं. केवल 2 into 3 क्या है? 6. तो यहां पर केवल 2 है तो यहां पे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से. तो यहां पर लिख दो फर्स्ट n is what? 2. यहां पर भी 2. then comes h is what? अगेन स्टार्टिंग में कितना आ चुका है? 3 into 2 is 6 and h was what? 6. LHS equals to RHS balance. पूरे ब्रैकेट्स बना देना, अच्छे ढंग से लिख देना and that's all it's done. So simple. Let's take another गंदा वाला एग्जाम्पल देखते हैं कुछ. ओके अब कर दो इसको. कर देता हूँ. So they are very very simple reactions. I mean कुछ नहीं करना होता है. Let's write again a reaction. So Fe plus H2O and it is going to give you Fe3O4 now this is the reaction which is given in the book.
उन्होंने हेडिंग इसमें दे करके रखा हुआ है, इसको बैलेंस करो। आंसर दिया है क्या? सैड, आंसर ही नहीं दिया। एनीवे, नाउ व्हाट आर दे आस्किंग यू? दे आर आस्किंग यू टू बैलेंस दिस रिएक्शन। Fe plus H2O will give you Fe3O4 plus H2। रूल नंबर 1, सबसे पहले एलिमेंट को अटैक करोगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Fe में हाइड्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी, तो पहले मैं इसको बैलेंस करूंगा, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा, फिर लास्ट में हाइड्रोजन को, लाइक दैट। सबसे पहले Fe, सो आप बॉक्सेस अपने आप बना लेना इनिशियल एंड फाइनल के। सबसे पहले यहां पर देखो Fe, तो इनिशियल कंडीशन में Fe कितना था आपके पास में? पहले था 1 और यहां पर कितना है Fe? 3 RHS में, तो ये रहा LHS, ये रहा RHS। एग्जाम में कभी भी LHS RHS नहीं रखते, एग्जाम में हमेशा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लिखते हैं। और ये भी कौन सी कंडीशन है? इनिशियल कंडीशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ओके, ये हो गया। देन कम्स अ वर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं भाई? यहां पर है 1, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है यहां पर 2, वहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यार एक चीज तो खुशी है, कम से कम हाइड्रोजन तो बैलेंस है। इतना खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला एम इसको नहीं, पहला एम इसको बैलेंस करना है। यदि यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। तो इसको क्या कर देना? 3। अब कंडीशन क्या हो जाएगी? आर प्रोडक्ट। यहां पर फिर से FeOH, रिएक्टेंट अब कितना हो चुका है? 3। प्रोडक्ट कितना हो चुका है? 3। चल, एक तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहां पर कितना है? 1। ऑक्सीजन यहां पर कितना है? 4। प्रॉब्लम। हाइड्रोजन यहां पर कितना है? 2। और हाइड्रोजन यहां पर कितना है? 2। अब प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। सो लेट्स डू अगेन। किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको? 4 से। सो ऑक्सीजन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से। तो पूरे H2O को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। सो लेट्स डू दिस अगेन। आर रिएक्टेंट and product, once again Fe, then comes O, then comes H. Guys, I am not making, because I am doing this on the board, so रूलर से मैं लाइंस नहीं बना रहा हूँ, आपको बनाने पड़ेंगे। ओके, लाइक टेबल जैसे आप बनाते हो। Fe रिएक्टेंट कितना था अभी? 3। और आपने यहाँ पर कितना लगाया? Fe 0 कैसे हो गया? अच्छा, ये ऑक्सीजन है। ओके, अभी हमें चाहिए था, यहाँ पर कितना चाहिए था? 4। तो यहाँ पर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो लेट्स सी, अब Fe कितना हो चुका है? 3। और प्रोडक्ट में Fe कितना है? अगेन 3। नो प्रॉब्लम। अब यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 4 ऑक्सीजन। यहां पर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है? 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 4 into 2 is 8 हाइड्रोजन। भाई यहां पर कितने हाइड्रोजन है? ओनली 2 हाइड्रोजन। सो यदि आप ढंग से देखोगे तो ये बैलेंस, ये बैलेंस, ये बैलेंस नहीं है। तो क्या करोगे? किससे मल्टीप्लाई करूंगा? ये 8 है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कॉमन सेंस, 4 से। तो यहाँ पर क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर से अगेन एक और ब्रैकेट बनाओगे, तो आप पे से क्या बन जाएगा? ये 8 और ये वाला पार्ट भी 8। एंड दैट्स ऑल्सो। व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर आएगा 3Fe plus 4H2O will give you Fe3O4 plus 4H2, and that's all it's done. So simple. क्या है? चलो, okay. So we'll stop this lecture of hardly 15 and 20 minutes right over here, and then कल chemical equation reaction, trigonometry, and आपका current electricity hopefully would complete. Okay. See you guys and enjoy. Bye bye.